ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ 8th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ। ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 11th ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.3 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਘਣ, ਘਨਾਵ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ, ਕਿਊਬॉइड ਐਂਡ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਢੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘਨਾਵ ਆਕਾਰ ਡੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਥੱਲੜਾ ਬੇਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਕਿਊਬॉइडल ਬਾਕਸਿਸ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਫਿਗਰ, ਵਿਚ ਬਾਕਸ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਦਾ ਲੈਸਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਮੇਕ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬॉइड, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਨਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬॉइड ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ, ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬॉइड। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬॉइड ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਘਨਾਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਪਲੱਸ ਉਚਾਈ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ LBH ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, 2LB + BH + HN, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, 60 ਮਲਟੀਪਲਾਈ B ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 40, ਫਿਰ ਪਲੱਸ 40 ਮਲਟੀਪਲਾਈ H ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 50, ਫਿਰ ਪਲੱਸ 50 ਮਲਟੀਪਲਾਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਦੇ ਨੀਚੇ 40 ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 4 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, 6 ਚੌਕਾ 24, ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ 5 ਚੌਕਾ 20, 2000 ਆ ਜਾਏਗਾ। 6 5 30, 3000 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 7400। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ, 148 14800 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਸਕੇਅਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ।
हुण घण दा कढना आपां, घण दी कुल सतह दा खेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो की हुंदा बेटा इहदा फार्मूला, इहदा फार्मूला हुंदा बेटा जी 6 इंटू एच स्केयर। वैसे तो इन्हें दोनों को घनाव के है, पर ये 50 50 50 तो घण ही लग रहा है आपां नूं, ठीक है भी सारी लंबाई चौड़ाई उचाई बराबर है, तो आपां ये फार्मूला लगावांगे। तो 50 दा स्केयर, तो 6 मल्टीप्लाई, हुण 50 नूं 50 नाल मल्टीप्लाई करना, तो 50 नूं 50 नाल सिर्फ 5 5 ही 25 बोलो, तो नाल 2 जीरोआं लगा दो, ठीक है जी। 25 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो, 25 छिका 150, नाल 2 जीरोआं एज इट इज़ लग जाएगियां, सेंटीमीटर स्केयर। तो बेटा इन्हां क्वेश्चन पूछा गया सी कि किस नूं लैसर अमाउंट मतलब घट जिहड़ा मटीरियल की जरूरत है। तो तुसीं देख रहे हो बच्चे, जिहड़ी पहली फिगर सी घनाव आकार की है ना, उस नूं घट मटीरियल की लोड़ है। तो इत्थे आपां लिखांगे किवें लाइन, द बॉक्स ए या कह लो जिहड़ा क्यूबॉइड है रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट या लैस अमाउंट या लैस मटीरियल टू मेक। ठीक है बेटा, समझ आ गया चंगी तरह। आपां नूं 2 फिगर्स गिवन सी ते इहदे विचों दसना सी कि किहनूं बनाउण लई आपां नूं लैस अमाउंट ऑफ मटीरियल चाहिदा है। आपां ने दोनों फिगर्स का की फाइंड किया, टोटल सरफेस एरिया वो पहली फिगर का घट आया सी, तो आपां लिख दिता कि बॉक्स ए दे लई लैस मटीरियल की जरूरत है। ठीक है जी, सैकेंड सम करते हैं बेटा आपां। हाँ जी, तो बेटा सैकेंड सम आपां शुरू कर रहे हैं। 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस नूं तरपाल दे कपड़े नाल ढकना है। इस तरह के 100 सूटकेसां नूं ढकण लई 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले किन्ने मीटर तरपाल दे कपड़े की जरूरत होगी। थोड़ा जा लेंथी सम है बेटा ये, तो थोड़ा ध्यान नाल देखना। इंग्लिश दे विच देखो, अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 इंटू 24 is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो बेटा पहला इस सम का मुद्दा समझो भी ये है की है। तुहाडे कोल एक सूटकेस है जिहड़ा कि क्यूबॉइडल शेप का, तो तुसीं इह जे 100 सूटकेसां दे उपर कवर बनाना है। तुसीं बाजार दे विच कपड़ा खरीदण गए हो जिहदी विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर, एंड वी डोंट नो अबाउट लेंथ। द क्वेश्चन इज़ टू फाइंड लेंथ। तो अपना जिहड़ा सवाल है बेटा, ये कपड़े की लेंथ पता करना है ताकि 100 के 100 सूटकेस जिहड़े ने वो चंगी तरह ढके जाण। बेसिक गल समझ आ गई बेटा, आपां करना की चाहुंदे हां। तो बेटा जी सब तो पहला तुसीं की करना है, जिहड़े ये 100 सूटकेसिस ने इन्हां दा टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो सोल्यूशन देखो, पहला लिखो एल कितनी है 80 सेंटीमीटर, ब्रैथ 48 सेंटीमीटर ते हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण आपां फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। ठीक है, एक सूटकेस दी कुल सतह का खेत्रफल। तो फॉर्मूला बेटा याद करना पेगा आपां नूं, की हुंदा जी 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल मतलब लंबाई, बी चौड़ाई, एच उचाई। तो वैल्यूज़ भर दो, तुहाडे कोल सारियां वैल्यूज़ हैगियां ने। 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, जदों 80 नूं 48 नाल गुणा करोगे ये आ जाऊगा 8 8 64 हासल 6 32 ते 6 38 3840। 48 नूं 24 नाल मल्टीप्लाई करोगे
ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ 1152। 24 ਨੂੰ 80 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 1920। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ 6912। 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 13,824 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨੇ, 100। ਤਾਂ 100 ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ 100 ਸੂਟਕੇਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 138240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੈਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਤਾਰਪੋਲਿਨ ਕਲੋਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਰਪੋਲਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕੱਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, यानी कि ब्रैथ कितनी है, वो गिवन है बेटा 96 सेंटीमीटर। तो यदा एरिया कढ़ लो बेटा, एरिया ऑफ तारपुलिन तरपाल दा खेत्रफल की फॉर्मूला हुंदा बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। तो लेंथ है अपने को x, ब्रैथ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण थोड़ा जा ध्यान दिओ, जिन्ना आपां कपड़ा खरीद के लियाना है, ठीक है, वो सारा कपड़ा 100 सूटकेसां दे उपर ही चढ़ जाना। इट मीनस जिहड़ा एरिया ऑफ तारपुलिन है, मतलब तरपाल दा जिहड़ा एरिया है वो किहदे बराबर होना चाहिए, 100 सूटकेसां दे। इंग्लिश लिखिए क्योंकि पहला इंग्लिश लिख रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसिस। पंजाबी च नाल दी नाल लिख लो बेटा, तरपाल दा खेत्रफल बराबर है 100 सूटकेसां दे कुल सतह दे खेत्रफल दे। तो एरिया ऑफ तारपुलिन कितना जी, तरपाल दा एरिया x गुणा 96। तो दूजे पासे आपां कितना आंसर कढ़िया सी बच्चे, एक बार मैं मिला ला, 1382400। ठीक है जी। तो हुण इत्थों आपां ने सिर्फ x की वैल्यू कढ़नी है, वो अपने कोले उस तरपाल की लंबाई आ जाएगी। बटे च कितना आ जाएगा, 96। तो बहुत वड्डा पहाड़ा लग रहा कटान लई, पहला छोटे पहाड़े ते कटा लो, 4 दे पहाड़े ते कटा लो। 4 दूनी 8, चौकम चौकी 16, 4 तीए 12, चौकम चौकी 16, 5 चौका 20, 6 चौका 24, नाल 2 0। हुण इहनूं आपां 12 दे पहाड़े ते कटा लीए। बारह नाल डिवाइड करना पएगा, मूँह जवानी नहीं हो रहा। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, उपरों तार लिया 5। तो इत्थे जाएगा हुणे 12 8 96। घटाओ जी, 15 चों 6 गए 9, तो उपरों तारना आपां हुण 6। तो 12 8 फिर 96, तो ये 2 0 उपर लग जाएंगे। ठीक है जी। तो अपना आंसर आ गया बेटा, इनू कटा के 28800। 2 दे टेबल ते कटा लो, 14400। तो लेंथ है जिहड़ी, लंबाई है जिहड़ी तरपाल दी, वो किन्नी आ गई, इन्ने सेंटीमीटर। हुण सेंटीमीटर ने तो उन्हें तो कहा सी किन्ने मीटर लगूगी। तो जो सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं बेटा, किहदे नाल डिवाइड करना हुंदा है, 100 नाल। 100 नाल डिवाइड करांगे तो अपने को 2 0s कैंसल हो गया। कितना आंसर आ गया, 144 मीटर। तो ये आया की है बेटा, तरपाल दी लंबाई। तो क्वेश्चन समझ आ गया राजे। बस तुसी मेन गल समझनी है
कि तरपाल जिहड़ी पाउणी है वो सूटकेस के सारे पासे पाउणी है कपड़ा कवर करन वास्ते। तो तुसी कुल सतह का खेत्रफल कढ़ना है। उस तो बाद एक दा आएगा, तुसी फिर उस तो बाद 100 सूटकेसां दा कढ़ना है। तरपाल का जिहड़ा खेत्रफल है वो लिख लेना है लेंथ इंटू ब्रैथ करके, तो दोनों एक दूजे के बराबर कर देना है। ठीक है बेटा, थर्ड सम ते आउने आ। हाँ जी, थर्ड सम की रकम देखो बेटा, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज़ 600 सेंटीमीटर स्केयर। एक इस तरह के घन की भुजा पता करनी है जिसकी कुल सतह का खेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्केयर है। इट मीनस बेटा कुल सतह का खेत्रफल थोनों पहला ही दिता होया तो तुसी साइड पता करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू ध्यान नाल सीख लो, 2 नंबर के विच यह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो देखो बेटा किवें लिखना तुसी, सरफेस एरिया, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिता होया 600 सेंटीमीटर स्केयर। पंजाबी च की लिखोगे, घन की सतह का खेत्रफल। तो जो बेटा कोई चीज़ पहला ही दिती होंदी है तो उन्होंने बराबर बराबर पा के लिख लो, तो वो ओवर दे विच इहदा फार्मूला लिखो। जिवें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है तो यदा फार्मूला की हुंदा है 6 इंटू साइड स्केयर या एज स्केयर या किनारे दी स्केयर। तो पंजाबी च की लिखोगे, किनारा दा स्केयर बराबर किहदे है ये 600। हुण जिहड़ा एज है बेटा वो इधर ही रह जाऊगा, एज दा स्केयर 6 जिहड़ा है 600 के बटे च चला जाऊ, क्योंकि खब्बे पासे ये गुणा हो रहा से। 6 नाल 600 कट गया बच्चे, आपां कित्थे तक पहुँच गए जी कि जिहड़ा एज है जो साइड है उहदा स्केयर 100 है। 100 किहदा स्केयर हुंदा है 10 का। स्केयर दोनों पासे कैंसल करो तो तुहाडे कोले एज कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। स्केयर कैंसल करन दा मतलब हुंदा बच्चे जो आपां इधरों 2 की पावर 2 चक्कांगे तो उन्हें दूजे पासे जाके 1/2 हो जाना है, 2 नाल 2 कैंसल हो जाना है। गल सिर उही है, आपां सिर्फ इन्हूं एक शॉर्टकट दे विच कर लैने हुंदे आ। ठीक है, इत्थे स्केयर सीगा तो आपां 10 की स्केयर बना लिया राइट साइड ते भी, तो एज अपने कोल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तुसीं इत्थे लेंथ भी लिख सकते हो जिवें उन्हें पुछया होया, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब पंजाबी दे विच तुसीं लिखोगे घन दी भुजा। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी देखो, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी नूं बाहर तो पेंट किया। देखो पेटी नाल बनी हुई है ना, तो इसने पेटी दे तल नूं छड्डता, मतलब जो इहदा थल्ले आ बेस है इत्थे इहने पेंट नहीं किया, तो उसनूं सारी जगह तो बाकी तो पेंट किया। पता करो उसने किन्नी सतह के खेत्रफल नूं पेंट किया। इंग्लिश देखो, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मैजर्स, नाल दे नाल इधर लिख भी लईए मैजर्स, लेंथ 1 मीटर, ब्रैथ 2 मीटर, तो हाइट हैगी है 1.5 मीटर। तो इन्हें कित्थे कित्थे पेंट किया बेटा, सारिया साइड्स ते उपर भी एक्सैप्ट द बॉटम, मतलब तले थलड़े हिस्से नूं बेस नूं छड्ड के। तो ये देखो बेटे ध्यान नाल फिगर दे विच खोखली फिगर बना के तुहानूं शो करदे हां। हुण देखो आ जिहड़ा बेस है जिस ते मैं कलर किया इसनूं छड्ड देना है, बाकी जिहड़े तुहानूं 5 फेस दिख रहे हैं उन्हां ते आपां पेंट करना है। तो इहदे लई फार्मूला आपां नूं खुद सोचना पएगा। किद्दां सोचोगे बेटा, तुसीं लिखोगे एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सैप्ट बॉटम, बॉटम नूं छड्ड के। पंजाबी च की लिखोगे, पेटी दे तल नूं छड्ड के, पेटी दे तल नूं छड्ड के बाकी खेत्रफल। तो बेटा जो आप तल छड्डता तो 4 कंधा तो हैगी ही ने ना, मतलब लेटरल सरफेस एरिया तो हैगा ही है, कर्वड तो हैगा ही है, वह फार्मूला की हुंदा है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं आप इस सम दे विच इहनूं 5वीं सतह का खेत्रफल। ठीक है, 2 गुणा उचाई ब्रैकेट दे विच लंबाई जोड़ चौड़ाई 2h ब्रैकेट च L प्लस B। हुण प्लस जो ये बेटा छत रहेगी इहदा खेत्रफल भी तो लाना है ना, कल्ली आपां ने बेस छड्डना है। तो जिहड़ी छत है जिथे तुसीं कमरे च बैठ के वीडियो देख रहे हो इस टाइम, तो ये छत वाल निगाह मारो, उहदे विच कल्ली लंबाई ते चौड़ाई ही हुंदी है, उचाई नहीं हुंदी। ठीक है, उचाई कित्थे होऊगी कंधां च।
ठीक है बेटा, इन्ना समझ आ गया। हुण जिहड़ी जिहड़ी वैल्यू तुहानूं पता है इत्थे आपां फिल कर दांगे। उचाई कितनी है 1.5 ते लंबाई कितनी है 1 प्लस चौड़ाई कितनी है 2, 1 गुणा 2। तो बेटा 15 दूना कितना हुंदा 30, 30 है। देखो 1 पॉइंट बाद डेसीमल लगना तो यह खत्म हो जाना है। ठीक है जी, तो यदा आंसर अपने को कितना आना है बाहरले दा 3। ब्रैकेट दे विच 2 + 1 3, इन्हों मल्टीप्लाई करोगे 2 एकम 2, तो पहला गुणा हुंदी हुंदी है 3 तीए 9, 9 + 2 बचे अपने को, तो आंसर आऊगा 11 मीटर स्केयर। ठीक है बेटा, जो आप पेंट करना है तो किन्ने एरिया नू पेंट करना है 11 मीटर स्केयर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। चलो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हुण आपां इस तो बाद। हाँ जी, देखो ये है डैनियल एक इस तरह के घनाव आकार कमरे दियाँ दीवारां ते छत नूं पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और उचाई तीनों आपां नूं दित्तियां होईयां। पेंट के हरेक डब्बे नाल, पेंट का जिहड़ा डब्बा लिआंदा है उहदे नाल 100 मीटर स्केयर जिहड़ा खेत्रफल है उसनूं पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसनूं पेंट के किन्ने डब्बियां की जरूरत होगी। देखो इंग्लिश दे विच डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। सेम चीज़ है बेटा ये भी, जो डैनियल है वो अपने जो तुसी कमरे बैठ के सोच रहे हो तो सोचो उन्हें सिर्फ कंधां ते पेंट करते हैं, एक आपां छत ते पेंट करते हैं जी आपां नूं उप्पर नूं देखदे वेले दिखती है, उन्होंने सीलिंग कहने हुंदे। ठीक है, तो वो L B ते H आपां नूं गिवन है, लिख लो नाल दी नाल। L कितनी है 15 मीटर, B 10 मीटर ते H हैगी है 7 मीटर। तो हरेक जिहड़ा कैन है कहते वो 100 मीटर स्केयर एरिया पेंट हो जाता। तो पहला आप एरिया तो कड्ढीए कितना पेंट करना है, तो पहला आप एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक तो चारे कंधां ते करना है, एंड सीलिंग ऑफ रूम, चारे दीवारां अते छत दा खेत्रफल। तो फॉर्मूला सेम रहेगा जो पिछले सम दे विच आपां लगाया सी। देखो ये तो हो गया 5वीं सतह का, प्लस L × B हो गया वो छत का। तो इत्थे बेटा वैल्यूज़ भरांगे 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दिती हुई है 7, L ते B हैगियां ने 15 ते 10, प्लस L × B करना है 15 गुणा 10। तो बाहरलियां नूं गुणा करांगे 7 दूनी 14, 15 दे विच 10 जोड़ांगे 25, 15 नूं 10 नाल गुणा करांगे 150। हुण 14 नूं 25 नाल गुणा करो, 25 चौका 100, 10 25 ते 10 35, जोड़ांगे बेटा ये आ जाऊगा 500 मीटर स्केयर। हुण अगे सम की सी, सम कह रहा सी कि जे आपां एक कैन लैके आउने आ तां उहदे नाल 100 मीटर स्केयर का एरिया जिहड़ा पेंट हो जाता है। तो आपां नूं इहो जे किन्ने डब्बे लगणगे जदों आपां इन्ने सारे एरिए नूं पेंट करना होगा। दिमाग 'च आंसर तो आ गया होगा काफ़ी बच्चों के कि 100 मीटर स्केयर नाल करन लई एक कैन की लोड़ हुंदी है, तो 500 मीटर स्केयर करना तो 5 कैन की लोड़ होगी। पर हुण इत्थे लिखना किवें है, देखो इफ 1 कैन ऑफ पेंट, ढोली लैके आने हो ना पेंट की, एवें कह लो। ठीक है, समझ आ गया ना हुण कवर्स। तो एक पंजाबी च इहनूं की लिखिया होया सी, कैन नूं पेंट दा डब्बा, एक पेंट दे डब्बे नाल पेंट किता खेत्रफल ये हुंदा 100 मीटर स्केयर। ठीक है, तो हुण नंबर ऑफ कैनस किवें कड्डांगे आपां, डब्बियां दी गिणती किवें कड्डांगे। तो ये मैं तुहानूं काफ़ी बार बेटा दस्सिया होया है कि जदों किसी की गिणती कड्ढनी है तो उपरले पासे आपां वड्डा खेत्रफल लगाना है, तो ओवर दे विच आपां छोटा खेत्रफल लगाना है, या फिर इत्थे इकाई विधि लगा लो। ठीक है, भी 100 मीटर स्केयर दे नाल एक जिहड़ा है कैन लगदा है, एक नाल कितना लगूगा 1/100, 500 नाल कितना लगूगा 500/100, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो इनू 0 नाल 0 कट गया, तो यदा मतलब किन्ने कैनस की जरूरत होगी 5 कैनस की। ठीक है जी, यह कंप्लीटली समझ आ गया।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਫਿਗਰਸ ਹੈਵ ਸੇਮ ਹਾਈਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਣ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖੋ, describe how the two figures at the right are alike and how they are different, which box has larger lateral surface area। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਬਾਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ ਫਿਗਰਸ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਬੋਥ ਫਿਗਰਸ have same height। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਣ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, one is a cylinder and the other is a cube। now what next, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, 2πr/h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਾਂਗੇ। 2 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਸ ਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਹਾਫ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ 7/2 ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7। ਦੇਖੋ 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22 × 7, 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਦੂਣੀ 14 ਤੇ 1 15, 154 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਘਣ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬ, ਘਣ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ 4 × ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ। ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਨਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 7 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ, 7 × 7 ਮਤਲਬ 49, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 196 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦਾ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਤਾਂ 154 ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਊਬ ਦਾ 196 ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਾਰਜਰ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦ ਕਿਊਬ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ,
ਘਣ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ज़्यादा है। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 6 ਸਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਬੇਟਾ।